corresponding student in the solution of CBSE sample question paper 2020-21 for the basic student. Today I will explain you question number 34 or part. What is given in this question? Look this side. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay, this figure is given to you. Look this side, all of you. This is your given figure. This figure is given into the question. Here, at the point P, the height of that girl, AP, the height of the girl is 1.2 meter. Okay. From this point, that girl spots a balloon which is moving horizontally with the wind. तो ये मूविंग यहाँ से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, मीन्स ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, ये सीधा सीधा कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, एंड द एंटायर हाइट ऑफ दिस बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज 88.2 मीटर. इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 88.2 मीटर गिवन है आपको. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट दैट गर्ल स्पॉट दिस पॉइंट, मीन्स फर्स्ट टाइम उसने बैलून को स्पॉट किया. At that time, the angle of elevation, this is your horizontal level, and with this horizontal level, that angle of elevation made is 60 degree. Clear to everyone? So from this point A to E, angle EAB, that angle is 60 degree. This is your angle of elevation. After some time, the position of balloon is changed at point C. At this point, the angle of elevation get reduced. तो कितना reduce हुआ सर? 30 degree. So from this point, at the point C, the angle get changed to the 30 degree. This is your horizontal level, and that angle is changed at 30 degree. Clear to everyone? So this is the description about this figure. How can you mention these all things into the given? Look this side. From the angle, from the given figure, the angle of elevation for the first position के लिए angle of elevation कितना था? And that is angle EAD. Angle EAD. You have to mention all the things when you are solving this question. So angle EAD is equals to 60 degree. And second position, this is your second position at point C. The angle of elevation is 30 degree. So angle BAC. Angle BAC is 30 degree. Clear to everyone? After this, the vertical distance of this balloon from the ground level से vertical distance कितनी थी इसकी? 88.2 मीटर. ये ground level से कितनी आ गई vertical distance? 88.2 मीटर. After that, the remaining distance from the horizontal level means यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर. So ये हाइट भी कितनी होगी? 1.2 मीटर. And this height is also 1.2 मीटर. So अगर मैं इस ग्राउंड लेवल से अगर बात करूँ तो कितनी थी इसकी एंटायर हाइट थी? 88.2. एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस डिस्टेंस, मींस हाइट ऑफ दैट गर्ल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, दैट इज 1.2 मीटर. सो रिमेनिंग हाइट, जो वर्टिकल हाइट जो रिमेनिंग रहेगी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज 87 मीटर. क्लियर टू एवरीवन? लुक दिस साइड. हियर ED इक्वल्स टू BC, मींस E to D height of this thing, and BC height of this point as 88.2 minus 1.2, that is 87 meter. Clear to everyone? In the next case, we just let A to D, the length between A to D means PQ let as x meter. That's why this length is also x meter. Clear to everyone? And QR, that length is y meter. That's why DB is also y meter. This whole things you have to mention into your when you are solving this question. Okay. Now for the solution, we have to take right angle triangles. Okay, because we have to use height and distance in this particular case, and using trigonometric ratio we can calculate what is the distance he traveled during this time interval. Means ये बैलून ने इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये अपन कैलकुलेट करेंगे. सो हाउ कैन यू सॉल्व? In first right angle triangle, you can see ADE. This is your first right angle triangle. So in triangle ADE, tan theta is equals to perpendicular upon base. We know very well. Pandit Badri Prasad Harar bole sona chandi tole. According to this, tan theta equals to perpendicular upon base. What is your perpendicular? DE. This is your perpendicular. Here, angle of theta. Angle of theta we can take as angle A. No, you can mention like DAE. Angle
DAE इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपने पास में DE अपॉन AD. ओके, नाउ 10 एंगल DAE कितना अपने पास में टोटल 60 डिग्री, प्लेस हियर 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू DE एंटायर हाइट कितनी है इसकी सर 87 मीटर एंड A to D द लेंथ इज कंसिडर एज x मीटर. क्लियर टू एवरीवन. नाउ 10 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x. द वैल्यू ऑफ x √3 इज इक्वल्स टू 87. If you have to calculate x from here, that is 87 upon √3. Can I take this is your equation number 1? Obviously, this is your equation number 1. In next case, second case के लिए बात करूँ मैं. In another right angle triangle, in triangle ABC, कौन सा आ गया अपने पास में ABC consider किया. Now again 10 theta equals to perpendicular upon base 10. The value of theta here BAC angle BAC which is equals to perpendicular कितना हो जाएगा BC, so BC upon base AB. Clear to everyone. Now 10 BAC that is 30 degree, so put here 30 degree which is equals to BC. B to C कितना अपने पास में 87 and AB A to B entire length कितनी है x plus y. Now you know very well tan 30 the value from this trigonometric ratio at 30 degree that is 1 upon √3. Place here 1 upon √3 which is equals to 87 upon x plus y. Okay, tan 30 कितना होता है 1 upon √3. We just place 1 upon √3 which is equals to 87 upon x plus y. Cross multiply this term. X plus y is equals to 87 √3. Is it clear to everyone? This is your equation number 2. Can I place the value of x from equation number 1 into equation number 2? Yes sir, definitely. Then put the value of x from equation number 1 into equation number 2. So place this value, x की value equation number 2 में जैसे ही place करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में x change as 87 √3 plus y is equals to 87 √3. 87 √3. We have to calculate the value of y. So shift this value another side. When you shift this value, then you change the sign. Then 87 √3 minus 87 upon √3. So what is the common in these two terms? Sir, 87. Remaining term √3 minus 1 upon √3. Now here 87, if you are taking the LCM in this case, यहाँ पे क्या √3 divided by 1, here 1 upon √3, then you have to take LCM as √3. So यहाँ पे term क्या आ जाएगी √3 into means 1 divided by √3 multiplied by √3 then 3 minus √3 divided by √3, sir 1 multiplied by 1 then 1. Okay, now 87 3 minus 1 it is 2 upon √3. You know very well in denominator we cannot take any rational number, that's why we have to rationalize this term. हम लोगों को क्या करना होगा इसका rationalization. So how can you rationalize? You can mention y is equals to 87 into 2. 87 into 2 multiply numerator by √3 and denominator also by √3. You have to multiply numerator and denominator by √3. √3 multiplied by √3 3 sir. Now 87 into 2 √3 upon 3. This is clear to everyone. Now cancel out this term by 3. When you cancel out 87 by 3, what you have to get? यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2 and this term 9 29. Okay, now remaining term is 29 into 2 √3. When multiplied 29 with 2, then we get 58 √3 meter. So how much distance balloon travel in this time duration? इस time duration में कितनी distance travel की balloon है? That is y, and that y length is equals to 58 √3 meter. So this is your solution. Clear to everyone? So let me once again explain this question whole. Look this sign. अपने पास में क्या है? From point P. AP is the height of the girl, is 1.2 meter. From this point, she spot a balloon with the angle of elevation 60 degree
and after some time the position of balloon is changed and the angle of elevation get reduced to 30 degree. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा angle of elevation 30 degree. The distance from this point to this means first position की जो balloon की distance है from that girl let as x meter and from this point the remaining distance take as y meter. Clear to everyone? Now this whole things we have to mention like this. From the figure the angle of elevation of the first position angle EAD is equals to 60 degree and for the second position angle BAC equals to 30 degree. The vertical distance QE is equals to CR is equals to 88.2. Then you have to entire height as 88.2. Then subtract the height of that girl. Girl की height मैंने subtract कर दिया. Now तो अपने पास में remaining height कितनी आ गई 87 meter. Now we are having two right angle triangle in this case ADE and another one ABC. ये दो right angle triangle है तो we have to use in triangle ADE. ADE में क्या आ जाएगा tan theta equals to perpendicular upon base tan एंगल 60 डिग्री होगा यहाँ पे. वर्टिकल एंगल कितना है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. प्लेस हियर 60 which is equals to 87 upon x. Now root 3 the value of tan 60 root 3 87 upon x. X multiply another side x root 3 is equals to 87 the value of x. Root 3 in multiply shift another side then it should be in divide. So this is your equation number 1. In second triangle ABC दूसरा triangle कौन सा सर second triangle है अपने पास में ABC. tan theta equals to perpendicular upon base. Once again tan 30 equals to 87 upon x plus y. Now cross multiply this term. You know the value of root tan 30 which is 1 upon root 3. So 1 upon root 3 is equals to 87 upon x plus y. Shift another side x plus y multiply by 1 then x plus y root 3 multiply by 87 then 87 root 3. Clear to you? This is your equation number 2. Put the value of x from equation number 1 into equation number 2 then it is 87 upon root 3 plus y is equals to 87 root 3. Now shift this value another side then it is y is equals to 87 root 3 minus 87 upon root 3. Taking common from these two terms it is 87 and here root 3 minus 1 upon root 3. Taking LCM in this case root 3 1 divided by root 3 multiplied by numerator then 3. Now root 3 divided by root 3 1 multiplied by 1 then it is 1. Then 3 minus 1 it is 2 root 8 87 into 2 upon root 3. You know in this case denominator considered as irrational number so we have to rationalize this term. How can you rationalize? Multiply numerator and denominator by root 3. root 3 से अपन ने numerator and denominator को multiply कर दिया तो 87 into 2 into root 3 here root 3 into root 3. When you multiply root 3 into root 3 क्या आ जाएगा अपने पास 3. Here 87 into 2 root 3 3 to 87 cancel out that is 29 and 29 into 2 is root 3. When you simplify 58 root 3 meter. This is the distance from the in this time duration balloon ने जितनी distance travel करी वो आ गया अपने पास में. तो B to D distance is 858 root 3 meter. Clear to everyone? Students, after question number 34 or part question number 35, what is given in this question? Look this side. The pth and qth and rth term of an AP are A, B and C respectively. Show that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equals to 0. Okay, this question is considered from chapter number. This question is coming from chapter number 5th. Okay, ये chapter number 5th का question है. Okay, now what is given? P term of an AP is equals to A, Q term of an AP is equals to B and rth term of an AP is equals to C. Then show that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equals to 0. How can you simplify this term? Look this side all of you. You know very well if we have to know about A sub n formula. A n is equals to A plus n minus 1 into D. This is your formula for nth term. Finding nth term of an AP that is A sub n equals to A plus n minus 1 into D. This is your formula. Clear to everyone? Here pth term of an AP according to question. अगर मैं इसी question के according अगर बात करूं तो according to question A P कौन से नंबर की टर्म निकाल रहा हूं मैं A sub n given है then pth नंबर की टर्म निकाल रहा हूं then A sub P because here small a is considered that's why I am taking capital A here. Okay, यहाँ पे small a already आपको given है तो मैंने इसको क्या ले लिया capital A consider कर लिया. So capital A sub n is equals to A plus n minus 1 into capital D.
आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स वाई मैंने इसको चेंज किया है। नाउ AP इज इक्वल्स टू फॉर द p टर्म a, n की जगह कितना आ जाएगा p टर्म की बात कर रहा तो AP इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। व्हाट इज A एंड D हियर? A इज फर्स्ट टर्म, ओके, एंड D इज कॉमन डिफरेंस है अपने पास में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ P इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे? P, सो प्लेस दिस वैल्यू एज P। सो यहाँ पे अगर जैसे ही फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे पहले पुट करूंगा फॉर द P टर्म, देन A सब n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है अपने पास। दैट्स वाई यहाँ पे n क्या है? n इज गिवन एज P, सो प्लेस हियर P प्लस इज इक्वल टू A प्लस n P टर्म। सो P माइनस 1 कॉमन डिफरेंस रिमेन एज D, क्योंकि इन सब में कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आर सेम। किसी AP की P टर्म और किसी AP की Q टर्म एंड किसी AP की R टर्म, ये तीनों टर्म है ना, वो आपको गिवन है, मीन्स एक सेम AP की गिवन है, नॉट चेंज। दैट्स वाई वी हैव टू टेक फर्स्ट टर्म एज A एंड कॉमन डिफरेंस एज D। सो AP के लिए अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो P टर्म कितनी है अपने पास में, विच इज इक्वल टू A। सो कैन आई राइट हियर A इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D। नाउ D multiply by this term, so A plus PD here minus D. Clear to everyone? So D coming another side, A minus D plus PD. Can I write in this way? This is your equation number 1. Clear to everyone? देखो अपने पास में AP, P टर्म क्या है अपने पास में A, so A is equals to first term A as it is प्लस P माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे P टर्म है, दैट्स वाई P माइनस 1। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस रिमेन एज D। सो मल्टीप्लाई किया D को P से, देन PD, एंड D मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 देन माइनस D। नाउ हियर A इज कंसीडर, A रिमेन सेम, फर्स्ट क्या है P टर्म क्या थी अपने पास A, दैट्स वाई यहाँ से A माइनस D दोनों आ गया और यहाँ से क्या आ गया PD। क्लियर टू वन? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर टू एवरीवन? नाउ इन सेकंड इक्वेशन व्हाट इज गिवन according to question here, q term of an AP is equals to B। तो q नंबर की q टर्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? A सब n वाले फॉर्मूले में अपन क्या रखेंगे? AQ इज इक्वल्स टू A कैपिटल A, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगा, प्लस n नंबर ऑफ टर्म किस में कन्वर्ट हो गया? Q में सर, तो प्लेस हियर Q माइनस 1 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? D, सो रिमेन एज कैपिटल D। क्लियर टू एवरीवन? Now AQ is equals to A plus A क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस Q minus 1 into D। Now AQ term means Q term is of an AP is equals to B, so place this value as B, which is equals to A plus QD minus D। यहाँ पे AQ टर्म कितना दिया हुआ था अपन को? B, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया B, तो यहाँ पे आ गया B इज इक्वल्स टू A प्लस Q, मीन्स D को Q से मल्टीप्लाई किया तो DQ माइनस D। क्लियर? नाउ B is equals to A minus D plus QD. Okay, this is your equation number 2. Similarly, we can take equation number 3 for the rth term. तो rth term के लिए अपन क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऐसे। Now यहाँ पे A सब R मीन्स rth term के लिए बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल आएगा अपने पास में, यस सर, कैपिटल A R इज इक्वल्स टू A प्लस R minus 1 into capital D. Now AR, rth term क्या है? rth term of an AP is equals to C, so this value as C is equals to A plus R minus 1 into D, D multiplied by these two term, what is considered? C is equals to A plus R minus R into D minus D, so C is equals to A minus D plus RD. Can I say this is your equation number 3? Look this side. What we have to show that A Q minus R plus B R minus P plus C Q P minus Q is equals to 0. ये अपन को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जाए तो A से क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है? Q माइनस R, B के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? R माइनस P, C के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? P माइनस Q। सो कैन आई टेक
देखो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है अपने पास, और दैट इक्वेशन नंबर इज 3। सो यहाँ पे आ रहा है ए बी एंड सी। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्यू माइनस आर से, बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर माइनस पी से, एंड सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी माइनस क्यू से, एंड एड दीज 3 इक्वेशन, देन व्हाट इज कंसीडर, वो पूरा सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, देन वी गेट आवर सॉल्यूशन। हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? सो यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Q माइनस आर से, Q माइनस आर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस आर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R माइनस P से। क्लियर टू एवरीवन? एंड इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, P माइनस Q से, मल्टीप्लाई बाय P माइनस Q। क्लियर टू एवरीवन? What you have to do, multiply equation number 1 by Q minus R, multiply equation number 2 by R minus P, and multiply equation number 3 by P minus Q. Clear to everyone? Now add इक्वेशन, ये मल्टीप्लाई करना अपन को, तो यू कैन मेंशन ऑल द थिंग्स हियर, और अदरवाइज यू कैन राइट एज लाइक दिस थिंग। आप सीधा ये चीज भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय Q माइनस आर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय R माइनस P, एंड मल्टीप्लाई 3 P माइनस Q, एंड एड ऑल द इक्वेशंस। सारी इक्वेशंस को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। सो लुक दिस साइड, ए को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ए मल्टीप्लाई बाय किससे किया, Q माइनस आर, यहां से आ जाएगा ए Q माइनस आर प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था अपन ने, R माइनस पी, सो राइट हियर R माइनस पी, प्लस लास्ट टर्म जो अपने पास थर्ड इक्वेशन है C को किससे मल्टीप्लाई किया था, थर्ड इक्वेशन C को मल्टीप्लाई किया अपन ने P माइनस Q से, सो C मल्टीप्लाई बाय P माइनस Q। नाउ विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगी, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड देन यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड टू। आपको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस बी प्लस पी डी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी प्लस पी डी मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, q माइनस आर से, इस मल्टीप्लाई बाई q माइनस आर, ठीक है, q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है b, a माइनस बी प्लस क्यू डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस क्यू डी मल्टीप्लाई बाय, ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, ये तो q माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ था, ये आ जाएगा r माइनस पी से, मल्टीप्लाई r माइनस पी। क्लियर टू एवरीवन? एंड लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म एडिशन में आएगी वो क्या होगा अपने पास में, c मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, तो c टर्म क्या है अपने पास में a माइनस डी मल्टीप्लाई प्लस आर डी मल्टीप्लाई बाय p माइनस q। क्लियर टू एवरीवन? सो लुक दिस साइड, कैन आई मल्टीप्लाई a माइनस डी विद q माइनस r। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई q माइनस r, यहाँ से आ जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई q माइनस r। क्लियर टू एवरीवन? एंड नेक्स्ट पी डी मल्टीप्लाई बाई q माइनस r, पी डी मल्टीप्लाई बाई q माइनस r। व्हेन यू सॉल्व दिस टर्म, देखो p यहाँ पे क्या है, q माइनस r मल्टीप्लाई बाई a माइनस b एंड q माइनस r मल्टीप्लाई बाई पी डी। सो राइट इन दिस वे। आफ्टर दिस सेकेंड टर्म क्या दी हुई अपन को, r माइनस p मल्टीप्लाई बाई a माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b मल्टीप्लाई बाई r माइनस q, यहाँ पे आ जाएगा r माइनस p, सॉरी, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है अपने पास में, क्यू डी आल्सो मल्टीप्लाई बाई r माइनस p, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू डी मल्टीप्लाई बाई r माइनस p। क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दैट लास्ट टर्म क्या दी हुई है अपन को, a माइनस डी प्लस आर डी मल्टीप्लाई बाई p माइनस q, तो p माइनस q a डी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई q, सॉरी p q से मल्टीप्लाई होगा, p माइनस q। आफ्टर दैट
आर डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू प्लस आर डी मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू। क्लियर टू एवरीवन? क्या इस टॉपिक से ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको? वापस समझना क्या किया, a माइनस डी है यहाँ पे, a माइनस डी को इस टर्म को q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर अपने पास में क्या दिया हुआ है, पी डी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर। ओके, सेकंड में क्या किया, r माइनस पी मल्टीप्लाई बाई a माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू डी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड स्टेप में क्या किया, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे आ गया a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू प्लस आर डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, तो आर डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू। लुक दिस साइड हियर, ये टर्म देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस डी क्यू आर, a माइनस डी आर पी, a माइनस डी पी क्यू। सो कैन आई टेक a माइनस डी कॉमन, a माइनस डी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग टर्म अंदर क्या रह जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा q माइनस आर हेयर प्लस आर माइनस पी हेयर p माइनस q, ये कंसिडर रहेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे a माइनस डी, a माइनस डी, a माइनस डी, a माइनस डी कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, q माइनस आर, r माइनस p माइनस q। सो r टू r कैंसिल आउट, माइनस p प्लस p कैंसिल आउट, माइनस q प्लस q कैंसिल आउट, देन दिस वैल्यू कंसिडर एज 0। ये वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो क्या आता है सर, 0। अब रिमेनिंग टर्म सर, आगे वाली टर्म का क्या, सो रिमेनिंग टर्म क्या थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है आपको पी डी क्यू आर, क्यू डी आर पी, आर डी पी क्यू। सो कैन आई टेक इन दिस होल टर्म, इसमें से d कॉमन ले लूँ मैं, तो इस पूरी टर्म में से मैंने क्या कॉमन लिया, प्लस d कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा सर, अंदर कंसिडर होगा p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ये टर्म कंसिडर हो जाएगी सर। आगे सॉल्यूशन करते हैं, हेयर a माइनस डी इंटू 0, ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो गई 0 प्लस d इंटू डी को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, p मल्टीप्लाई बाई दीज टू टर्म, तो क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। ओके, q मल्टीप्लाई बाई r क्या आ जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू। आफ्टर दैट r मल्टीप्लाई बाई p, यहाँ पे आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू, ये टर्म कंसिडर हो जाएगी। नाउ एनी टर्म इज कैंसिल आउट हियर, यस, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे भी टर्म क्या आई, 0। सो वी कैन मेंशन a माइनस डी इंटू 0 प्लस d इंटू 0, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। सो वी कैन से a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी। देखो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, this solution is equals to 0. Clear to everyone? Once again, let me explain you this question. P term of an AP equals to A. So this is your first equation. P term. nth term का फॉर्मूला क्या होता है, a sub n is equals to a plus n minus 1 into d. आपको कौन से नंबर की टर्म चाहिए, pth नंबर की, तो यहाँ पे p आ जाएगा, a is equals to, यहाँ पे a है इसकी वैल्यू, a is equals to a प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रही, p, तो p माइनस 1 इंटू डी। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस टर्म एंड वी कैन राइट लाइक दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, a इज इक्वल्स टू a माइनस डी प्लस पी डी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में b इज इक्वल्स टू a माइनस डी प्लस क्यू डी, एंड थर्ड इक्वेशन c इज इक्वल्स टू a माइनस डी प्लस आर डी। क्लियर टू एवरीवन? 1 2 3 these three इक्वेशन वी आर हैविंग इन आवर शो, मीन्स अपन को जो प्रूव करना है, शो दैट में क्या दे रखा है, a इंटू क्यू माइनस आर, तो a क्या है सर, ये रहा a, इसको मैं q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय q माइनस आर। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मीन्स b को किससे मल्टीप्लाई करना है, r माइनस पी, दैट्स वाई यू कैन मल्टीप्लाई r माइनस पी दिस टर्म, एंड थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, p माइनस क्यू, सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय p माइनस क्यू। नाउ एड दीज ऑल टर्म, इन तीनों टर्म को क्या करना है, अपन को ऐड करना है। सो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ऐड कर दिया इसको। नाउ
a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू क्यू माइनस पी, ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू, लुक दिस साइड, ये क्या दे रखा है, q माइनस आर दे रखा है, a माइनस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस b प्लस पी डी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर, सिमिलरली a माइनस बी प्लस क्यू डी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी, तो a माइनस बी प्लस क्यू डी आर माइनस पी से मल्टीप्लाई हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन a माइनस बी प्लस आर डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, p माइनस क्यू से, तो हो गया मल्टीप्लाई। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लुक दिस साइड, a माइनस बी, इसमें भी a माइनस डी है, here is also a माइनस डी, here is also a माइनस डी, तो a माइनस डी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, q माइनस आर से, a माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर। सो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया। ओके ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हुई, पी डी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर, तो पी डी इंटू क्यू माइनस आर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी, a माइनस बी इंटू मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी, एंड क्यू डी, यहाँ पे क्या है, क्यू डी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी। नेक्स्ट टर्म ए डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आर डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू। क्लियर टू एवरीवन? इन दिस होल टर्म a माइनस बी इज कॉमन। देखो इस पूरी टर्म में यहाँ पे एक, ये आपका सेकेंड टर्म, और ये तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया a माइनस बी। रिमेनिंग टर्म q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो इंटू ए डी क्या होता है, जीरो, तो मैंने ए डी इंटू जीरो कर दिया। इन नेक्स्ट टर्म यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, d है, तो d कॉमन ले लिया, p इंटू क्यू माइनस आर, q इंटू आर माइनस पी, r इंटू पी माइनस क्यू, ये आ गया। मल्टीप्लाई किया, p इंटू क्यू पी क्यू, p इंटू आर माइनस पी आर, q इंटू आर क्यू आर माइनस p इंटू क्यू कितना आ जाएगा, माइनस पी क्यू। यहाँ पे r इंटू पी क्या आ जाएगा, आर पी, माइनस r इंटू माइनस क्यू क्या आ जाएगा, माइनस आर क्यू। क्लियर टू एवरीवन? इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो जीरो आ जाएगा, a माइनस बी इंटू जीरो प्लस d इंटू जीरो, दोनों से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हैंस प्रूव हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।